اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. معزز و محترم و مکرم و محتشم حاضرین و سامعین، معزز شرکائے کلاس فن خطابت و نقابت کورس، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین قدسیہ کے تصدق سے آج ہم اس کلاس کے دوسرے روز یہاں پر حاضر ہیں، موجود ہیں، اور یقیناً آپ لوگوں نے کل کا دن بھی انجوائے کیا ہوگا، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ العزیز یہ لرننگ پروسیس جاری رہے گا اور انشاءاللہ آپ فیل کریں گے کہ ڈے بائی ڈے یو آر گیٹنگ بیٹر اینڈ یو آر ریسیونگ دا نالج انشاءاللہ اینڈ گیٹنگ دا پریکٹس ایز ویل. آج جو ہمارا سیشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ سیشن ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں اور میں ابتدا کرنا چاہتا ہوں گفتگو کی اہمیت سے، خطاب کی اہمیت سے، کلام کرنے کی اہمیت سے، سٹائل سے. بنیادی طور پر یہ جو گفتگو کرنے کا ہم نے آپ سے جو کہا ہے اور آپ نے جو ہمیں کہا ہے، اور یہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک دونوں طرف سے ایک تعلق بنے گا. ہم بھی آپ سے کچھ ریکویسٹ کریں گے اور آپ بھی ہمیں اپنی ویڈیوز بنا کے بھیجیں گے اور وہ ایک پورا سلسلہ چلے گا. یہ جو ایک تعلق بننے جا رہا ہے یہ اگرچہ ڈسٹینس لرننگ ہے، ڈسٹینس لرننگ، لیکن آئی ڈونٹ فیل دیٹ دس از اے ڈسٹینس لرننگ. آپ ہمارے قریب ہیں، ہم آپ کے قریب ہیں، اور آپ نے یوں ہی فیل کروانا ہے جیسے آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. یعنی آپ نے دور دور اپنے آپ کو نہیں سمجھنا، آپ نے اپنے آپ کو اس کلاس میں شریک سمجھنا ہے اور موجود سمجھنا ہے. میں آپ سے جو کہوں آپ نے وہ بھی جو ہے وہ اپنی زبان سے اٹر کرنا ہے، اپنی زبان سے اس کو ایکسپریس کرنا ہے. علامہ سرفراز صاحب جو آپ سے کہیں وہ بھی آپ نے اپنی زبان سے ایکسپریس کرنا ہے. اور اپنی ڈائریز آپ نے ضرور لکھنی ہے. ڈائریز دیز آر مسٹ، یہ بہت ضروری ہیں آپ کے لیے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. آپ نے ہر حال میں اپنی ڈائریز بنانی ہے اور ہو سکتا ہے ہم اینڈ پر آپ کے جو نوٹس ہیں ان کو چیک بھی کریں، اس کا بھی ہم کوئی ایک لائحہ عمل بنا لیں گے. تو آپ نے اس کو جو ہے وہ کبھی بھی نگیٹ نہیں کرنا، اس کو کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرنا، اور اس میں کبھی بھی سستی اور کاہلی نہیں برتنی. آپ نے اپنے نوٹس تیار کرنے ہیں اور اس کو ہمیشہ اپنے استعمال میں رکھنا ہے اور آپ کی زندگی بھر کی جو بک ہے وہ تیار ہو جائے گی. آئیے آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جو میں لفظ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل ہم نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد جو سب سے پہلا انسان کا ایٹریبیوٹ بیان فرمایا، انسان کے اندر جو وصف بیان فرمایا، انسان کے اندر جو صفت بیان فرمائی، وہ علمہ البیان، کہ ہم نے اس کو بیان کرنے کا طریقہ سکھایا، ہم نے اس کو گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا. ہاؤ بیوٹیفل دیز ورڈز آر. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر دوسری مخلوقات سے افضل ہے، بہتر ہے، تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اس کی قوت گویائی ہے، اس کے کلام کرنے کا طریقہ ہے، احسن کلام کرنے کا طریقہ، اچھی گفتگو کرنے کا طریقہ، دوسرے کے دلوں میں، دوسروں کے دماغوں میں اپنی بات کو بٹھانے کا طریقہ جو اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا. یہاں پر خالی گفتگو کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر خالی کلام کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر بیان کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ بیان کی بات ہو رہی ہے کہ بیان کیسے کرنا ہے، اپنی گفتگو کو آپ نے لوگوں تک ایکسپریس کیسے کرنا ہے اور اس کا اظہار کیسے کرنا ہے، لوگوں تک آپ نے اپنی بات کو کنوے کیسے کرنا ہے.
अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना कैसे है, दिस इज व्हाट मैटर्स। ये वो बुनियादी चीज है जो कि मैटर करती है, जो कि यूं कह लीजिए कि हमें अपने जहनों में, अपने दिमागों में इस चीज को हमेशा रखना है। आइए, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फन खिताबत सीखने से पहले और बाकायदा इस क्लास के आगाज से पहले आइए अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि इंसान के जो अमल का दारो मदार है ना वो नीयतों पर है। इंसान के अमल का दारो मदार नीयतों पर है। आप फन खिताबत सीख रहे हैं, आप गुफ्तगू सीख रहे हैं, आपका मकसद अगर मशहूर होना है तो भाई ये नीयत ठीक नहीं है। आपका मकसद पैसे कमाना है तो भाई ये नीयत ठीक नहीं है। आपका मकसद लच्छेदार तकरीर करना और लोगों को मुतासर करना ये है तो ये ठीक नहीं है नीयत। आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैंने इस फन के जरिए दीन को प्रोपिगेट करना है, दीन को लोगों तक पहुंचाना है, कन्वे करना है, हुजूर के दीन को, हुजूर के मिशन को, आका अलैहिस्सलाम के पैगाम को आपने लोगों तक पहुंचाना है। जैसा कि कल इसी स्टेज से बयान किया गया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि कोई अगर एक आयत भी तुम तक पहुंचे तो उसको मेरी तरफ से लोगों तक पहुंचा दें। तो वो मुबल्लिगीन कहां हैं, वो प्रोपेगेटर्स कहां हैं, वो खतीब कहां हैं, वो मुकर्रिरीन कहां हैं। तहरीक मिनहाजुल कुरान वो प्लेटफॉर्म है जो इस वक्त लोगों को ये चांस देता है कि आइए इस दीन की प्रोपेगेशन में अपना हिस्सा डालें। लोग अपने अपने चक्रों में फंसे हुए हैं। कोई कहता है तस्वीर हराम है, कोई कहता है गुफ्तगू स्पीकर पे गुफ्तगू करना वो हराम है, कोई कहता है जी ये मीडियम इस्तेमाल करना जायज नहीं, कोई कहता है ये मीडियम इस्तेमाल करना जायज नहीं। हम इन्हीं भूल भुलैयों में फंसे रहेंगे और आलम कुफ्र बड़ी तेज रफ्तारी के साथ हमारी नस्लों में सरायत करता जा रहा है, पंजे अपने मजबूत करता जा रहा है, पंजे गाड़ता जा रहा है बड़ी मजबूती के साथ। तो आइए सबसे पहली नीयत हमने जो करनी है आज इस क्लास के आगाज से पहले वो ये करनी है कि हम इस फन को सीख कर इखलास का मुजाहिरा करते हुए हम दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे, दीन का मैसेज लोगों तक पहुंचाएंगे, दीन की फिक्र लोगों तक पहुंचाएंगे। ये तहरीक मिनहाजुल कुरान का बुनियादी मकसद है। तहरीक मिनहाजुल कुरान का ये बुनियादी मकसद है, फंडामेंटल एम है, फंडामेंटल एम, पर्पस। इसके बगैर यूं कह लीजिए कि आपका कोई काम भी इखलास पर मबनी नहीं हो सकता, सिंसियरिटी पर मबनी नहीं हो सकता। तो अपनी नीयतों को हमने दुरुस्त करना है। आइए आज हम अपनी गुफ्तगू और खिताब की तरफ जाते हैं। बुनियादी तौर पर जब कोई हमें कहता है कि आइए खिताब करिए, खिताब कीजिए, साफ ज़ाहिर है आपको कोई दावत देगा खिताब की, तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हमने खिताब को तैयार कैसे करना है, खिताब की तैयारी कैसे करनी है। जो खिताब होगा वो तो होगा, लेकिन उससे पहले तैयारी है, प्रिपरेशन है। खिताब की तैयारी है, उसकी प्रिपरेशन है, उसके एलिमेंट्स हैं। आपने खिताब को एलिमेंट्स पर पूरा एक खिताब आएगा, हमारी पूरा एक लेक्चर आएगा, लेकिन अभी जो बात मैं करना चाहता हूं वो ये कि हमने तैयारी कैसे करनी है। कब्ल अज खिताब, कब्ल अज खिताब, अभी आप गए नहीं, अभी आपको सिर्फ दावत मिली है, अभी आपसे सिर्फ कहा गया है कि आपने खिताब करना है। तो भाई आप तैयारी कैसे करेंगे। मैं ये उलमा और खुतबा से जो है, जो लोग हमारी इस क्लास में शरीक हैं और हमारी बहनें और बेटियां भी शरीक हैं,
اور مرد و خواتین مرد حضرات بھی شریک ہیں، میں سب سے کہنا چاہتا ہوں یہ بات، آپ کو انویٹیشن مل گیا کہ آئیں جی خطاب کریں، اب آپ نے اس خطاب کی تیاری کرنی ہے۔ ابھی خطاب شروع نہیں ہوا، قبل از خطاب آپ نے کیا تیاری کرنی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ قبل از خطاب آپ نے تیاری کیا کرنی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، اب یہ بات آپ لکھتے جائیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے موضوع کا انتخاب کرنا ہے۔ جماعتی صاحب مارکر نہیں ہے اور ڈسٹر نہیں، آپ نے موضوع کا انتخاب کرنا ہے۔ سلیکشن آف ٹاپک لکھ لیجئے، سب سے پہلے کیا ہے بولیے، سلیکشن آف ٹاپک۔ سلیکشن آف ٹاپک۔ حسن جماعتی صاحب نے فاصلہ کم چھوڑا ہے آج میرے درمیان اور وائٹ بورڈ کے درمیان، اور مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے کہ شاید وائٹ بورڈ گر نہ جائے۔ جی یہ ایفرٹس ہیں، دیکھیے یہ جو کلاس آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ پوری ٹیم لگتی ہے آپ کے سامنے، اور پوری ٹیم کی یہ ایفرٹس ہوتی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ نے ذہن نشین رکھنی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے، سلیکشن آف ٹاپک۔ آپ نے موضوع کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، جس خطاب کا موضوع نہیں ہوتا وہ خطاب ہی نہیں ہوتا، پھر وہ آئیں بائیں شائیں، ادھر کی پکڑ لی ادھر کی پکڑ لی، ادھر کی مار دی ادھر کی مار دی، وہ ہوتا ہے۔ خطاب کیا ہوتا ہے، جس کا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہو، جس کا کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ہو، جس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہو، جس کا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہو۔ تو سلیکشن آف ٹاپک، میں بڑی بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، کبھی ٹاپک کے بغیر گفتگو نہ کریں۔ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے آج کیا گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے ہاں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کا ٹاپک نہیں ہوتا، آیت کوئی اور پڑھی جاتی ہے، اور آیت مبارکہ کا ترجمہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ وہ جب ہم ایلیمنٹس آف سپیچ پر آئیں گے کہ خطاب کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے عناصر کیا ہوتے ہیں، تو پھر اس پر وہاں پر کھل کر بات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ابھی تو میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ وہ خطیب صاحب خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں نے برکت کے لیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ یعنی خطاب کے دوران بھی ہمیں برکت کی ضرورت ہے، اور وہ قرآن مجید سے لی جائے گی۔ آپ تصور کیجئے، ہم کلیئر نہیں ہیں کہ میری گفتگو کا آغاز قرآن مجید سے ہونا چاہیے۔ وہ قرآن مجید جو علم کا منبع ہے، وہ قرآن مجید جو علم کا محور ہے، وہ قرآن مجید جس سے تمام علوم پھوٹتے ہیں، تمام موضوعات پھوٹتے ہیں، ہم نے اس قرآن مجید کو صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، جسٹ فار دا ریوارڈ، کہ اتنی آیتیں پڑھیں گے اتنا ثواب، اتنے الفاظ پڑھیں گے اتنا ثواب۔ خطیب صاحب بھی سٹیج پر کھڑے ہو کر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے برکت کے لیے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ ترجمہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ گفتگو اشعار سے شروع ہوتی ہے، کسی نہ کسی نعت سے شروع ہوتی ہے، اور پھر آگے ایک لمبی واقعات کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے، اور واقعات کو پھر نعتوں کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے۔ وہ سارا آپ جانتے ہیں کہ کیسے خطاب ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، 2-2 گھنٹے کا 3-3 گھنٹے کا خطاب ہوتا ہے، جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے۔
बस वो चलते हैं लेकर उसको। अल अमान अल हफीज। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि यू शुड बी क्लियर्ड, आपको वाज़हियत होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। अगर आपको यह पता नहीं कि मैंने किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है तो फिर आप खिताब नहीं करने आए, आप गपशप लगाने आए, गॉसिप करने आए। आप कोई चीज उधर से पकड़ेंगे, कोई चीज उधर से पकड़ेंगे, फिर आपको दरमियान में शेरों का सहारा भी लेना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए किसी मसलक को पकड़कर उसका किया पांचा भी करना पड़ेगा, लतीफे भी सुनाने पड़ेंगे आपको, लतीफे भी, लताइफ भी सुनाने पड़ेंगे। ये लताइफ रूहानी लताइफ की बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तानी लताइफ की बात हो रही। आपको लताइफ भी सुनाने पड़ेंगे, आपको लोगों को हंसाना भी पड़ेगा, शेरों के जरिए लोगों को मुतासर भी करना पड़ेगा, सुर भी लगानी पड़ेगी, 100 चीजें। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका मौजू क्या है, आपने आज गुफ्तगू क्या करनी है, और उस मौजू के मुताबिक अपनी गुफ्तगू को शुरू करना है और एंड करना है, तो फिर देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। देन देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। फिर आप अपने खिताब को एडजस्ट करेंगे, और वो मैं आगे आता हूं कि हमने कैसे खिताब को एडजस्ट करना है। तो पहली चीज बोलिए, मौजू का इंतखाब। हर कोई अपनी अपनी जगह पर बैठ कर ये जुमला मेरे साथ दोहराए कि सबसे पहली चीज खिताब करने के लिए कौन सी है? बोलिए, मौजू का इंतखाब, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। देयर इज नो अदर ऑप्शन, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। आपको मौजू चुनना ही होगा अगर आप अच्छे मुकर्रिर या मुकर्रिरा बनना चाहती हैं। तो मौजू का इंतखाब, ये मौजू का इंतखाब कैसे होता है? 2-3 चीजें आप हमेशा सामने रखा करें। नंबर 1 तो हालात को, नंबर 2 माहौल को, माहौल, और नंबर 3 अवामी सोच को, पब्लिक ओपिनियन, सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस, माहौल, इसके मुताबिक आप गुफ्तगू करेंगे। यह भी हो सकता है कि आपको मेजबान कह दे जी इस मौजू पर गुफ्तगू करनी है, मेजबान कह दे। आप मेजबान से पूछ भी सकते हैं ये किस मौजू पर खिताब किया जाए, पूछ भी सकते हैं आप, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप पर, आप पूछ लें। तो लेकिन मौजू का इंतखाब बहुत जरूरी है। मैंने 3 अवामिल उसमें बयान किए हैं। नंबर 1 हालात, नंबर 2 माहौल, और नंबर 3 पब्लिक ओपिनियन, अवामी राय, अवामी सोच। लोग क्या सुनना चाहते हैं आपसे, माहौल क्या है वहां पर। भाई स्टेज पर सारे उलमा बैठे हैं, खिताब करने के लिए गए आप, स्टेज पर सारे उलमा बैठे हैं और आप वहां पर आमियाना गुफ्तगू करके आ जाएं तो उस गुफ्तगू का कोई असर नहीं पड़ने वाला। और सारे अवाम उन्नास बैठे हैं, आप वहां पर इल्मी गुफ्तगू करके आ जाएं, उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अवाम सुनना क्या चाहते हैं? मिसाल के तौर पर कोई इशू उठा हुआ है, इशू है हुजूर की अहले बैत के हवाले से इशू है, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के हवाले से इशू उठा हुआ है। यहां पर तो इशू उठाए जाते हैं ना, लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, लोग इस्तेमाल होते भी हैं बिहम्दिल्लाह ताला, सिवाय मिनहाजुल कुरान के लोग इस्तेमाल होते हैं। तो कोई इशू उठा हुआ है और लोग आपसे सुनना चाहते हैं कि आप सईदा कायनात की शान बयान करें, लोग आपसे सुनना चाहते हैं कि आप सईदना सिद्दीक अकबर की बात करें, लोग आपसे सुनना चाहते हैं कि आप दिफाए सहाबा व अहले बैत बयान करें, और आप वहां पर जो है वो किसी और मौजू पर गुफ्तगू करके आ जाएं, तो लोग फिर आपको पसंद नहीं करेंगे। तो जो करंट
मौजू चल रहा होता है उसके मुताबिक आपने गुफ्तगू करनी है। लोग जो आपसे चाहते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो आपने बयान करना है। एक बात ज़हन नशीन कर लें, वो ये कि जिस मौजू को आपने तैयार किया है ना, उसको छोड़े ना, कभी जाकर मौजू चेंज ना कर लें किसी के कहने पर, क्योंकि दूसरे मौजू पर आपकी तैयारी नहीं होगी। फिर अगर तो आप बड़े फन्ने खां खतीब हैं और आपको एक अरसा बीत गया है खिताब करते करते, तो अब आप चेंज कर सकते हैं मौके को देखकर, मौके के लिहाज से, या लोगों की राय और पब्लिक ओपिनियन को देखकर। लेकिन अगर आप मेरे जैसे माठे खतीब हैं तो भाई आपने क्या करना है, अपने मौजू को चेंज नहीं करना, उसको सिर्फ थोड़ा सा डाइवर्ट करना है, उसको डाइवर्ट करना होता है, माहौल के मुताबिक उसको डाइवर्ट करना होता है। आपने बात की समझ आ रही है? तो वो तरीका क्या है डाइवर्ट करने का, वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज आपसे डिस्कस होगा। तो सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, बोलिए? मौजू का इंतखाब। हसन जमाती साहब, कल आपने ये भी नोट करना है कि जो पार्टिसिपेंट हैं हमारे, वो एक तो अल्लामा सरफराज साहब की जो प्रेजेंटेशन है वो देंगे, और फिर इसके अलावा जो हम ये चीजें बयान करते हैं इन चीजों को भी अपनी जुबान में वर्बली 1 से 2 मिनट में वो भी एक वीडियो बनाकर जो है वो जरूर भेजेंगे। वीडियो बनाकर इसकी भी जरूर भेजा करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सबसे पहले आपने मौजू का इंतखाब करना है, और मौजू का इंतखाब करने के बाद आपने अपने मौजू का एक मुकम्मल खाका तैयार करना है। क्या करना है बोलिए? खाका। अपने मौजू को तरतीब देना है, खाका, स्ट्रक्चर बनाना है आपने, स्ट्रक्चर या खाका अपने मौजू का खाका बनाना है। मैं सबसे पहले, और यहां पर यह बात ज़हन नशीन कर लें और नोट कर लें कि आपने अपने खिताब को, अपनी गुफ्तगू को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। अल्लामा सरफराज साहब आपको प्रैक्टिकल ये बातें करवाएंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ समझना है। 3 हिस्सों में तकसीम करना है अपनी गुफ्तगू को। सबसे पहले ओपनिंग, आवाज। आपकी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज होना जरूरी है। आपकी गुफ्तगू का बाकायदा ओपनिंग उसकी जरूरी है, ओपनिंग, उसका आगाज जरूरी है। देखिए, जिस गुफ्तगू की ओपनिंग अच्छी नहीं होती वो गुफ्तगू अच्छी नहीं होती। मैं 3 एलिमेंट्स आपके सामने रख रहा हूं। पहला, ओपनिंग, आगाज। आपकी गुफ्तगू का आगाज, स्टार्ट। जिसकी गुफ्तगू की ओपनिंग अच्छी नहीं होती, या ओपनिंग नहीं होती, या आगाज नहीं होता, वो गुफ्तगू ही नहीं होती। जिसकी कोई बेस नहीं होती। ओपनिंग से मुराद बेस, आपने बेस बनानी है। बेस, बुनियाद बनानी है, फाउंडेशन ले करनी है आपने, फाउंडेशन रखनी है अपनी गुफ्तगू की, जो कि आप यकीनन कुरान मजीद से रखेंगे। कुरान मजीद की आयतें मुबारका पढ़ेंगे, आपको हर टॉपिक कुरान मजीद से मिलेगा। और मैं कहता हूं एक आयत नहीं, कई कई आयात मिलेंगी। अभी पिछले दिनों हुजूर सईद शेखुल इस्लाम की गुफ्तगू थी एमफिल पीएचडी स्कॉलर्स को, मुल्क भर में, फैसलाबाद में भी, लाहौर में भी। तो हुजूर सईद शेखुल इस्लाम ने साहब जरा बड़ी तैयारी की होगी उस पर, लेकिन आपने जब गुफ्तगू फरमाई तो 2 घंटे की गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद को आपने लिया, और कुरान मजीद की आयात से ही मौजू निकालते गए। अहदीस पर जाने की जरूरत पेश नहीं आई, मौका ही नहीं आया। कुरान मजीद की आयात से
दावत के तकाजे और दाई के औसाफ, इस मौजू पर जो अभी 10 तारीख को मिनहाज टीवी पर चलना है खिताब, आप देखिएगा उसको जरूर। तो बहुत शानदार गुफ्तगू फरमाई आपने। तो बताने का मकसद ये है कि आपने प्रॉपर उसकी ओपनिंग करनी है, प्रॉपर उसका आगाज करना है। फिर ओपनिंग है जिसको आप स्टार्ट भी कह सकते हैं, स्टार्ट, आपकी गुफ्तगू का स्टार्ट, यू किक ऑफ, आप आगाज करते हैं अपनी गुफ्तगू का, ये पहली चीज। फिर आपकी गुफ्तगू का एक मिड आता है, मिड, मिड दरमियान आता है आपकी गुफ्तगू का, जिसमें आप बहुत सारी चीजें बयान कर चुके होते हैं, बहुत सारी चीजें आप बयान कर चुके होते हैं, लोगों को बता चुके होते हैं, आप कुरान मजीद से अपने दलाइल को एस्टैब्लिश कर चुके होते हैं, अहादीस मुबारका से एस्टैब्लिश कर चुके होते हैं। अब आपकी गुफ्तगू का क्लाइमैक्स होता है, क्लाइमैक्स लिख लें, क्लाइमैक्स एक मिड होता है, या उसको क्लाइमैक्स भी कह लें आप, क्लाइमैक्स। ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। आपने गुफ्तगू करनी है 5 मिनट की, आपने गुफ्तगू करनी है 10 मिनट की, आपने गुफ्तगू करनी है 20 मिनट की, आपने गुफ्तगू करनी है आधे घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, जितनी भी गुफ्तगू करनी है वो इन 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए। सबसे पहले उसकी ओपनिंग, फिर उसका मिड या क्लाइमैक्स, और फिर उसकी एंडिंग। As there was an opening, जैसे एक ओपनिंग थी, इसी तरह there is an ending of your speech as well. आपकी गुफ्तगू की एंडिंग भी बहुत जरूरी है, आपकी गुफ्तगू का इख्तिताम भी बहुत जरूरी है। प्रॉपर इख्तिताम, प्रॉपर इख्तिताम। अचानक आपने वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन नहीं कह देना, अगला बंदा हैरान और शशदर ही रह जाए कि हजरत साहब को हुआ क्या है, अल्लामा साहब को, इन्होंने तो कोई प्रॉपर इसका इख्तिताम ही नहीं किया गुफ्तगू का। अचानक शुरू नहीं होना और अचानक एंड भी नहीं करना। आपके जहन में प्रॉपरली एक चीज होनी चाहिए कि मैंने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस बात पे करना है। अपनी गुफ्तगू का आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा और आपका एंडिंग पॉइंट ये होगा, दरमियान में मिड तो मौजूद ही रहेगा। ये चीज जिसको करनी आ जाती है वो एक अच्छा मुकर्रिर या मुकर्रिरा बन जाते हैं, वगरना आप अच्छे मुकर्रिर नहीं बन पाते। फिर आप यूं कह लीजिए कि एक एवरेज मुकर्रिर बनते हैं या नॉर्मल मुकर्रिर बनते हैं, या आप यूं कह लें कि आप गुजारे लायक मुकर्रिर बनते हैं। गुजारे लायक अच्छे मुकर्रिर बनना चाहते हैं तो फिर आपको इन चीजों को अपनी गुफ्तगू के अंदर इंडक्ट करना होगा, इंक्लूड करना होगा, शामिल करना होगा। आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका कलाम बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके अल्फाज बहुत अच्छे होने चाहिए, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका मौजू बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर 2 चीजें हो गई, नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, नंबर 2 खाका आपने बनाना है और उसको 3 हिस्सों पर तकसीम करना है, ओपनिंग, मिड एंड एंडिंग। और अगली जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी जो तैयारी है गुफ्तगू की वो इतनी कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए, इतनी कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए कि शुरका जो आपके सामने बैठे हों उनके ज़हनों में पैदा होने वाले सवालात के जवाबात आपकी तकरीर के अंदर मौजूद हों। मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। हमारे यहां खिताब क्या होता है? वाकयाती खिताब होता है।
कौन सा खिताब होता है बोलिए? वाकयाती खिताब। मिसाल के तौर पर आपने मिलादुन नबी पर खिताब करना है, मिलादुन नबी पर गुफ्तगू करनी है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, आका अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका के चंद वाकयात बयान कर, सैयदा आमना की गोद में हुजूर के तशरीफ लाने से लेकर जी वो जो है वो आती रही, हूरें आती रहीं, अंबिया अलैहिस्सलाम की जो वालिदा हैं वो आती रहीं, उनकी बीवियां आती रहीं, मुबारकबाद देने के लिए आती रहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया आते रहे मुबारकबाद देने के लिए। बस इस तरह के वाकयात, वो देखें जी काबा पर जो है वो झंडे लहरा दिए गए, रोशन हो गया, ये सारे वाकयात हैं। क्या हैं बोलिए? वाकयात। लेकिन मैं जिस बात की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं, इन वाकयात को ऐसे बयान किया जाए, ऐसे बयान किया जाए कि इनके जरिए जो लोगों के जहनों में सवालात पैदा होते हैं, उन सवालात के उनको जवाबात भी मिल जाएं। The questions which are arises in the minds of people, they should be answered. उनको उनका जवाब मिलना चाहिए। अगर आप जवाब नहीं दे पाते, अगर जवाब नहीं देते, अगर आप उनको जवाब नहीं देते, तो जिस तरह वो खाली ज़हन आए थे, इसी तरह वो खाली ज़हन वापस चले जाएंगे। आप तसव्वुर कीजिए, खाली बर्तन लेकर आए थे आपकी मजलिस में, और खाली बर्तन लेकर वो सवालात वैसे के वैसे ही हैं। आपकी तैयारी इतनी कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए, हमअर्जेहती होनी चाहिए। आप तमाम इसके जो पहलू हैं वो कवर करें, ज़हनों में उठने वाले सवालात के जवाबात का इहाता करें, इहाता करें। तो जब आप इहाता करते हैं सवालात का, तो आपको मुताला करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बोलिए? मुताला करना पड़ता है, आपको स्टडी करना पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ता है। आप किताबों को खंगालते हैं, आप कुरान मजीद का मुताला करते हैं। हमारे यहां मुताला की कमी है, सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा यकीन रखते हैं। हम आजकल गूगल स्कॉलर हैं, गूगल स्कॉलर। आप नाराज ना होइएगा, हम कौन से स्कॉलर हैं? गूगल स्कॉलर। बस जो देखना हो जी गूगल कर दें इसको, वहां से जो कुछ मिलेगा वो लोगों को बयान कर दें। और हो सकता है वो सत ही नॉलेज हो, वो पेटेंट नॉलेज ना हो। तो गूगल स्कॉलर नहीं बनना आपने, आपने पेटेंट स्कॉलर बनना है, मजबूत स्कॉलर बनना है, सॉलिड स्कॉलर बनना है। मेहनत करनी है, मुताला अपना अच्छा करना है। वो इंशाल्लाह मुताले वाली बात कल आएगी, मजीद चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब। तो ये चीजें इंशाल्लाह अजीज हम मजीद डिस्कस करते रहेंगे। मैंने 3 चीजें आज बयान की हैं, इनको नोट डाउन कर लें और 2 से 3 मिनट में अपनी वीडियोस बनाकर भी शेयर करें। नंबर 1, आपने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, मौजू का इंतखाब करना है। नंबर 2, अपनी गुफ्तगू जो मौजू आपने तैयार करना है उसका खाका आप बना लें, पॉइंट्स लिख लें और 3 स्टेप्स में बनाएं, उसकी ओपनिंग, उसका मिड और फिर उसकी एंडिंग। और आखिरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने कंप्रीहेंसिव तैयारी करनी है, कंप्रीहेंसिव तैयारी करनी है। आपने उसके तमाम पहलुओं को लेकर चलना है और फील करें ये सवाल भी पैदा हो सकता है, ये भी पैदा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उनके जवाबात भी आप अपनी गुफ्तगू में ही दे दें। अब आखिरी बात करूंगा और अपनी गुफ्तगू को एंड कर दूंगा, वो ये कि अक्सर औकात आप फील करते हैं, जो लोग आप में से हुजूर सैयदी शाइखुल इस्लाम को सुनते हैं, जो लोग आप में से हुजूर सैयदी शाइखुल इस्लाम को सुनते हैं, कि जब शाइखुल इस्लाम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो गुफ्तगू के दौरान ही आपके ज़हन में एक सवाल पैदा होता है और अगले ही लम्हे हुजूर शाइखुल इस्लाम उसका जवाब दे देते हैं, अपनी गुफ्तगू के अंदर ही जवाब दे देते हैं। आप यकीनन हैरान होते होंगे कि ये कैसे हो गया, अभी तो मेरे ज़हन में सवाल आया था। रूहानी तसर्रुफ भी हो सकता है, हम में से अक्सरियत का ज़हन उसी तरफ जाता है। और ये हकीकत भी है कि जो अल्लाह का वली होता है वो लोगों के दिमागों को, लोगों के ज़हनों को, लोगों के दिलों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। वहां जुबान भी संभाल के बैठना पड़ता है, दिल भी संभाल के बैठना पड़ता है।
یہ بات ٹھیک ہے، سچ ہے، لیکن اس سے بڑی بات وہ یہ کہ ذہنوں میں اٹھنے والے ممکنہ سوالات کے جوابات کی تیاری، مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہر سوال کا جواب موقع پر عطا کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ اچھے مقرر بننا چاہتے ہیں، اچھی مقررہ بننا چاہتی ہیں، تو بھائی میرا مشورہ یہ ہے کہ پھر موضوع کو تھوڑا سا نہ لیا جائے، موضوع پر جب بھی تیاری کریں تو کمپریہنسو تیاری کریں۔ 3 چیزیں میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، موضوع کا انتخاب حالات، ماحول اور عوامی سوچ کے مطابق، موضوع سے متعلق مکمل مواد کا جو خاکہ ہے اس کی تیاری، اور پھر شرکاء کے ذہنوں میں اٹھنے والے ممکنہ سوالات کے جوابات کی تیاری۔ بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، عزتیں عطا فرمائے۔ کل ملاقات ہوگی، وما علینا الا البلاغ المبین۔